Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, hope you will enjoy. You are well. You are well. आज हमारा जो क्लास है वो लेक्चर नंबर 4 बायोलॉजी यूनिट फर्स्ट. So today is our topic about linkage of biology with other fields of studies. चूँकि बायोलॉजी जस्ट एक फील्ड नहीं है, ये दूसरे फील्ड के साथ भी अटैच रहता है, दूसरे डिसिप्लिन के साथ, यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह के साथ. और इस लिहाज से ये लिंकेज बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी में. तो ये लिंकेज हमें बायोलॉजी का इस्तेमाल, दूसरे फील्डों का इस्तेमाल बायोलॉजी में करता है. So let's start. The function and metabolic pathway occurring in living organism follow the principles of other fields of study like physics, chemistry, geography, economics, etc. हमारे बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, वो बायोलॉजी के अलावा दूसरे ही जो ब्रांचेस या फील्ड्स होते हैं जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री, उसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ लिंकेज मेक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का मतलब है दो डिसिप्लिन के दरमियान एक नया ब्रांच, एक नया साइंस. मिसाल के तौर पर अगर बायोलॉजी और फिज़िक्स का एक मजमुआ बन जाए, एक डिसिप्लिन बन जाए, तो उसको हम बायोफिज़िक्स कहते हैं. अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दरमियान एक नया ब्रांच या डिसिप्लिन बन जाए तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. सो इसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कह लेते हैं, जो दो फील्डों से या दो डिसिप्लिन से बना हुआ होता है. सम ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस आर मेंशन बिलो. कुछ ऐसे नए डिसिप्लिन हमारे साथ बने हैं which are made by the combination of these two, biology and other science field. So let's move toward the first interdisciplinary science, that is biophysics. What is biophysics? Biophysics, a new field, a new discipline which is the combination of two branches or two fields, that is biology and physics. Is an interdisciplinary study of understanding biological phenomena and problem using the principles and techniques of physics. बायोलॉजी के जितने भी प्रॉब्लम्स है, टेक्निक्स है, प्रोसेस है, अगर इसमें हम फिज़िक्स को इन्वॉल्व करें, उसके प्रिंसिपल को, इनके लॉस को वगैरह को, तो हम फिर बायोफिज़िक्स में स्टडी करेंगे. फिज़िक्स इज़ रिलेटेड विद द मैटर एंड एनर्जी, एंड ह्यूमन बॉडी और अदर ऑर्गेनिज्म इज आल्सो अ टाइप ऑफ मैटर, एंड रिएक्शन इन आवर बॉडी इज occurring because of energy. So there is also a great linkage between biology and physics, because energy is the requirement for all activities of life, and when there is energy there will be physics. So biophysics is combination of physics and biology in living organism bodies, process, activities, etc. It is used in physiology, bioenergetics, neuroscience, फार्माकोलॉजी. बायोफिज़िक्स कौन सी फील्ड में इस्तेमाल होता है हमारे पास? जो बायोलॉजी के जो फील्ड्स है, हर फील्ड में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मेन फील्ड है दैट इज़ फिजियोलॉजी. एज वी स्टडीड अबाउट फिजियोलॉजी, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ to know the function of every organ in our body, in organism body, we study physiology. Bioenergetics is the branch of biology which deal with the energy relationship in the living organisms. So that is bioenergetics. It means how energy produced in the living organism, how it used, etc. And neuroscience is the science related to the neurons, how neurons convey a message from body, inside the body, from one part to another body.
and pharmacology as we studied the science of drugs. So all these branches of biology we use physics. So all these, when these combine, that is form of biophysics. For example, photosynthesis follow the laws of physics during the absorption of light. अब फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट में होता है. If we observe that in photosynthesis light is the main things, and light is a source of energy, we know that. And when we study the nature of light in the biological system, we would go to the biophysics. So that is the biophysical phenomena which is related to the physics, the biology. So other is the respiration. Respiration is the energy producing process. Again there is energy use, and when there is energy and matter, we will discuss about the biophysics or physics. So biophysics is interdisciplinary science which related the physical laws, principles in the living bodies, organisms. So that was about the biophysics. जो बायोफिज़िक्स हमारे, इसके अलावा जो हमारे बायोफिज़िक्स और भी हमारे ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरेज, जितने भी प्रोसेस होते हैं ये ज़्यादातर बायोफिज़िक्स से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उसमें हम ज़्यादातर फिज़िकल या फिज़िक्स से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स है वो इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. So now we will move in another interdisciplinary science, that is biochemistry. So biochemistry is concerned with the chemical substance and process that occur in organism. So biochemistry is the combination of chemistry and biology. As we know, chemistry is a science which deal with the structure, compositions of matter and laws about the matter. मैटर के मुताबिक जितनी भी बातें होते हैं, इसकी कंपोजिशन, इसके स्ट्रक्चर, इसकी बॉन्डिंग वगैरह, जितने भी प्रोसेस है वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. अब बायोकेमिस्ट्री वो फील्ड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि वह लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बना होता है, इसके बॉडी में कौन से मालिक्यूल होते हैं, कौन से मालिक्यूल से बना होते हैं, कौन से मालिक्यूल रिएक्शन करते हैं, जितने भी रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, केमिकल रिएक्शन भी, वो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. सो इज कंसर्न विद द केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस दैट अकर इन ऑर्गेनिज्म. जो भी सब्सटेंस लिविंग बॉडी में है या जो प्रोसेस उसके रिएक्शन उसके बॉडी में होते हैं वो हम स्टडी करेंगे. इट इन्वॉल्व स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मेड ऑफ सेल्स. अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में हम वो चीज़ें भी पढ़ते हैं जो सेल बनाते हैं. सेल जिस चीज़ से भी बना होता है उस चीज़ों को बारे में जानते हैं कि सेल किस चीज़ से बना होते हैं, वो कौन से मालिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सेल के अंदर है, सेल के बाहर है, सेल किस चीज़ से बना होते हैं, या सेल के अंदर कितने रिएक्शंस होते हैं, एंड ऑफ दूज दैट प्ले ए की रोल इन केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ. और उन रिएक्शन के बारे में भी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे जो वाइटल रिएक्शन है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ. मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन रिएक्शंस, ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज़ फोटोसिंथेसिस विच टेक प्लेस इन द प्लांट्स, इट इज़ an energy capturing process, and the second one, that is respiration, which is energy gaining process. So these both reaction occurring in the cell, and when we study any type of chemical reaction in the living body, we will study in biochemistry. When we study about the structure, composition of any living bodies, we will study in the biochemistry. So biochemistry एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस होंगे उनको स्टडी करेंगे, जितने भी प्रोसेस होंगे उनको स्टडी करेंगे, उनकी कंपोजिशन मालूम करेंगे कि ये चीज़ किस चीज़ से बना हो, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल वाल है ये किस चीज़ से बना है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना है, कौन से केमिकल कौन से एलिमेंट से बना है. सो ये सब कुछ हम कौन से ब्रांच में स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री इज बायोकेमिस्ट्री में. सो बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो ए इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. सो नाउ वी विल मूव बायोजियोग्राफी. बायो मीन लाइफ, जियोग्राफी मीन अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ.
So biogeography, it is the distribution of organism in space and time. बायोजियोग्राफी में हम क्या स्टडी करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, के इस ज़मीन पर कितने एनिमल्स है, इतने एनिमल कहाँ कहाँ पर है। कुछ एनिमल एक जगह पर होते हैं, कुछ दूसरी जगह पर होते हैं, कुछ प्लांट्स एक जगह पर होते हैं, कुछ प्लांट्स दूसरी जगह पर होते हैं। तो इन नॉलेज को हासिल करने के लिए हम बायोजियोग्राफी में क्या स्टडी करते हैं। सो बायोजियोग्राफी इज़ रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर दो बातों का जिक्र हुआ है, एक स्पेस और दूसरा टाइम का। तो स्पेस से मुराद क्या है और टाइम से मुराद क्या है? स्पेस से मुराद है कौन सी जगह पर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में कहाँ कहाँ पर है। तो यह हमें बायोजियोग्राफी में होते हैं, कुछ जानवर एक जगह पर होते हैं, कुछ दूसरे पर होते हैं। और टाइम का मतलब है ड्यूरेशन ऑफ द ईयर। सो ईयर के मुख्तलिफ ड्यूरेशन में कुछ ऑर्गेनिज्म एक जगह पर होते हैं, कुछ वही ऑर्गेनिज्म दूसरे ड्यूरेशन में यानी पीरियड में वहाँ से मूव कर दे, माइग्रेशन करने दे। सो हम इस बारे में माइग्रेशन भी स्टडी करेंगे कि एनिमल माइग्रेशन क्यों करते हैं, प्लांट ऑर्गेनिज्म माइग्रेशन क्यों करते हैं और किस तरह करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर इन बायोजियोग्राफी वी स्टडी वाई पोलर बियर आर फाउंड ओनली इन सर्टेन पार्ट ऑफ द आर्कटिक रीजन। हम ये भी स्टडी करेंगे मिसाल के तौर पर कि ये जो पोलर बियर होता है, सफ़ेद बियर, ये आर्कटिक रीजन में जो होते हैं, नॉर्थ और जो साउथ होता है, आर्कटिक रीजन और एंटार्कटिक रीजन जो होते हैं, वहाँ पर कुछ इलाक़ों में खास होते हैं और ये जो ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल रीजन में नहीं होता। तो ये क्यों इस तरह होते हैं? तो हम ये स्टडी करेंगे कि क्यों पोलर बियर इन इलाक़ों में होता है और दूसरे इलाक़ों में नहीं होता। हालांकि ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में रीजन में ये नहीं होता, सिर्फ आर्कटिक रीजन में होता है। और वाई मलेरिया काजिंग मॉस्किटो फॉर फ्लोरिश इन डैम एंड वार्म एरियाज। और हम ये भी स्टडी करेंगे कि मॉस्किटो के जो मलेरिया काजिंग जो मॉस्किटोज़ है वो कुछ इलाक़ों में क्यों हास होते हैं, क्यों ऐसे इलाक़ों में ज़्यादा होते हैं जहाँ वार्मनेस ज़्यादा होती है और डैमनेस ज़्यादा होती है, मतलब गीलापन और टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं। अगर हम मलेरिया की डिज़ीज़ को देखा जाए तो वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, और ट्रॉपिकल एरियाज़ उस एरिया को कहते हैं जहाँ मौसम गर्म रहता है सारा साल। सो बायोजियोग्राफी इज़ mainly related with the distribution of organism and different aspects of organisms relating to their migrations, their ability to cause diseasing, etc. सो हमने पढ़ा कि बायोजियोग्राफी में हम ये चीज़ें स्टडी करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म एक ख़ास जगह पर क्यों होते हैं, या कुछ ऑर्गेनिज्म क्यों कुछ खास इलाक़ों में होते हैं और कुछ खास में नहीं होते। सो ये रिलेटेड था, बायोजियोग्राफी से रिलेटेड आज हमने पढ़ा। सो बायोजियोग्राफी। अच्छा, अगर हम एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे तो हम जाएंगे जू जियोग्राफी में। कौन से में? जू जियोग्राफी। अगर हम प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे तो फाइटोजियोग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये तो प्लांट। अच्छा, अब हम आते हैं बायोमेट्री और बायो स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक एक ऐसा फील्ड है, ये मैथमेटिक का एक ब्रांच है, ये एक रिलेटेड फील्ड है जिसमें हम डेटा के ऊपर काम करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। अब डेटा क्या चीज़ है? द फैक्ट्स और फिगर्स विच ट्रेंड फ्रॉम द रिसर्च या ऑब्जर्वेशन से जो डेटा या जो मालूमात हमें हासिल होता है उसको डेटा कहते हैं। डेटा नंबर की शक्ल में भी होता है, 1 2 3 4 5, और वर्ड्स की शक्ल में भी होता है, और डेटा पिक्चर की शक्ल में भी होता है, जो मुख्तलिफ़ शक्ल में होता है। जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स या बायोलॉजी में रिसर्च करते हैं, किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करते हैं या डेटा कलेक्ट करते हैं, तो फिर उस डेटा के ऊपर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़
प्रोसेस करते हैं, उसका एवरेज मालूम करते हैं, उसका मीन मालूम करते हैं, उसका मैक्सिमम वैल्यू मालूम करते हैं, मिनिमम वैल्यू मालूम करते हैं, उसका वगैरह वगैरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम रिसर्च करें तो उसको हम फिर स्टैटिस्टिक के ज़रिए क्या करते हैं और उस पर अप्लाई करते हैं, तो फिर हम बायो स्टैटिस्टिक की फील्ड अप्लाई करते हैं। सो स्टैटिस्टिक इज़ द फील्ड विच रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा मैनिपुलेशंस एट्सेट्रा। जब हम बायो स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं तो हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो रिसर्च की है हमने, उससे जो डाटा हासिल किया उसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल फार्मूलाज इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। जब हम बायोलॉजी में स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल फार्मूलाज अप्लाई करते हैं रिसर्च के ऊपर, तो फिर हम बायोस्टैटिस्टिक में जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च डाटा। अब यहाँ पर फिर डाटा की जिक्र हो गई कि हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास जो डाटा आता है रिसर्च से, तो इसकी हम एनालिसिस करते हैं। डाटा एनालिसिस का मतलब है कि डाटा के मुख्तलिफ अरेंज करना, उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना। डिज़ाइन मतलब उसको एक ख़ास तरीके से फिट करना, और इंटरप्रिटेशन मीन उससे नतीजा हासिल करना, वजाहत करना कि हमारे पास ये रिसर्च हुआ, इसका क्या नतीजा हासिल हुआ। तो ये हम बायोमेट्री में या बायोस्टैटिस्टिक में स्टडी करते हैं। सो बायोस्टैटिस्टिक रिलेटेड विद द डेटा, रिसर्च डेटा, और रिसर्च हम तहकीक को कहते हैं। जब किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में तहकीक हो जाए तो उससे जो डाटा आ जाए उसके ऊपर हम जो फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोमेट्री और बायोस्टैटिस्टिक। नाउ वी विल मूव टू आवर लास्ट interdisciplinary science, that is bioeconomics. So bioeconomics is the correlation या combination between biology and economics. ये इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी के दरमियान क्या होता है, एक फील्ड होता है। सो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम प्रॉफिट लॉस और कॉस्ट वगैरह की स्टडी करते हैं कि किसी भी चीज़ की कॉस्ट, प्राइस, इसका प्रॉफिट, इसका लॉस किस तरह होगा किसी भी प्रोडक्ट का। तो बायोलॉजी का इससे क्या ताल्लुक़ है। जब बायोलॉजी में हम किसी भी नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचे, नए वैरायटी या कोई भी नई चीज़ इन्वेंट करे, डिस्कवर करे या प्रोड्यूस करे, तो उसको हम स्टडी करते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं उसकी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदा करेंगे इकोनॉमिकली, कितना नुकसानदेह है हमारे लिए, कितना बेनिफिशियल है या नहीं है, हमारा इनकम सोर्स है नहीं है, हमें इससे फ़ायदा फाइनेंशियल फ़ायदा मिल सकता है, प्रॉफिट या नहीं मिल सकता है। इस आस्पेक्ट से हम स्टडी करें फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट कैलकुलेट एंड कंपेयर द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट। इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं किस चीज़ की, और कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट, नफ़ा नुकसान की। आप द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है उसको नफ़ा नुकसान के बारे में स्टडी करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म हमें कितना फ़ायदा देगा, ये हमें कितना नुकसान देगा। मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप। अब एक फसल है जिसकी एक नई वेराइटी मार्केट में आ गई, तो साइंटिस्ट ही कैलकुलेट करते हैं कि इससे हमें कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होगा, ये कितना फ़ायदेमंद साबित होगा यानी कितना नुकसानदेह साबित होगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पैसे कमाएगा या नहीं कमाएगा और इसकी वैलिडिटी क्या है। तो बायोइकोनॉमिक्स इज़ रिलेटेड विद द फाइनेंशियल रिलेशन से। ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स को, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा, नुकसान करेगा या नहीं करेगा, कितना करेगा, ज़्यादा करेगा, कम करेगा। तो इस लिहाज से हम क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। सो दिस इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस जो हमने अब पढ़े, बायोलॉजी के साथ मुख्तलिफ ब्रांचेस ने ताल्लुक़ बनाया। और टुडे के आज के लिए इतना बस।
अल्लाह हाफिज़। स्टेब्लिश्ड।